ভবানীপুর অঞ্চলে শুধু একটি রাস্তায় না, পুরো ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে 144 ধারা আমরা চাই পুরো ইলেকশন প্রসেসটা যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হয়। আমরা জানি একটি রাস্তার উপর পলিটিক্যাল কারফিউ লাগানো আছে, কিন্তু আমরা চাই সারা ভবানীপুর অঞ্চলে 144 ধারা লাগু করা হোক। দ্বিতীয়ত, আমরা চাই সিএপিএফ বাহিনী এরিয়া ডমিনেশন এবং শুধু বুথের ভেতরে না, বুথের বাইরেও যেন থাকে। আমরা এটাও চাইছি যে যতগুলো বুথ আছে সেগুলোতে সিসিটিভি দিয়ে লিঙ্ক টু দ্য ইলেকশন কমিশন যেন থাকে, অনলাইন লিঙ্কেজ উইথ দ্য সিসিটিভি। এটা অসম্ভব কিছু ব্যাপার না, এটা কলকাতার মধ্যে এটা করা খুবই সম্ভব। আমরা এটাও চাইছি যে আপনারা নির্বাচন কমিশন কলকাতা পুলিশের জন্য আলাদা একটা দর্শকের জন্য যেমন ফ্যাসিলিটি হয় সেটা একটা করে রাখুন, তারা দর্শক হিসেবেই থাকবে। কিন্তু এই যে কনফিডেন্স বিল্ডিং, আজকে আমরা ইলেকশন কমিশনকে বলে দিয়েছি যে এই জায়গায় এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইলেকশন, যেটা সাংবিধানিক সংকট এড়ানোর জন্য ইলেকশন হচ্ছে, সেই ইলেকশনটার মধ্যে লোকেদের কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার্স তাদের দায়িত্ব, এবং তাদের উপরেই আমরা তাদের ছেড়ে দিয়েছি। আমরা কতগুলো সাজেশন দিয়েছি, কিন্তু এই সাজেশনগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব হচ্ছে ইলেকশন কমিশন। আমরা চাই সুষ্ঠু নির্বাচন হোক, আমরা চাই হাই টার্ন আউট হতে, আমরা চাই লোকে ভয়শূন্যভাবে ভোট দিতে, বিপুল পরিমাণে যাতে তারা ভোট দেয়। আমরা এগুলো দাবি করেছি এবং আমরা এর জন্যে পুরো রেসপন্সিবিলিটি এবং দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের ওপর দিয়েছি। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন চালানো। লেট দেম ডু দেয়ার ডিউটি। একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হচ্ছে দিলীপ ঘোষ ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট, তিনি কিছুক্ষণ আগে প্রেস মিট করেছেন এবং করে বলেছেন যে আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে দাবি জানাবো যে নির্বাচনের পরিবেশ নেই, নির্বাচন স্থগিত রাখা। এরকম কোনো দাবি কি আপনারা জানেন? দিলীপ দা যেটা বলেছেন, দিলীপ দা প্রকাশ করে বলছেন যে এখন অবধি যে ব্যবস্থা হয়েছে সেটার ওপর তার আস্থা নেই, যে তার ল্যাক অফ কনফিডেন্স এই যে পুরো আয়োজনের ওপর, সেটা উনি প্রকাশ্যে এটা বললেন। আমরা এই কারণেই, যাতে সুষ্ঠুভাবে ইলেকশন হয়, তাই সেই কারণেই আমরা নির্বাচন কমিশনের ওপর এই দায়িত্বটা দিয়েছি। তাদের জিম্মেদারি, তারা যেন এই ইলেকশনটাকে সুষ্ঠুভাবে করতে চেষ্টা করে, আর 144 যেন নিশ্চয়ই পুরো এলাকার ওপরে যেন লাগু করা হয়। আরেকটা জিনিস শোনা যাচ্ছে যে আজকে রাতেই তো আপনাদের 3 শীর্ষ নেতা বাংলার দিল্লিতে যাচ্ছে এবং তারা আগামীকাল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে দেখা করতে পারেন, অভিযোগ জানাতে পারেন। এটাও বিজেপি সূত্রে আসছে। এরকম কি কোনো পরিকল্পনা হয়েছে? আমার জানা নেই। हिंदी बोल। आज यही बैठ के बोल दूं? आज बीजेपी का प्रतिनिधि दल, हमारे माननीय सांसद श्री स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे उपाध्यक्ष प्रदेश के प्रताप दा और मैं आया
देखिए, आज सुबह जो दो घटनाएं हुई, बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना, इसलिए कि अब महज कुछ दिन बचे हैं ये बाई इलेक्शन का। सुबह 11 के लगभग हमारे माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी के ऊपर हमला होता है शीतला मंदिर के आसपास, और वहाँ पे ये देखा गया कि प्राय 8 लोग, चिन्हित 8 लोग, वो जिनका संपर्क बंगाल के एक बड़े तृणमूल नेता के संग है। नेता का नाम है श्री मदन मित्रा। उनके लोग देखे गए। एक आध का नाम मैं बोल देता हूँ: विकी, फरशा लालू, लाडला अहमद, आरो किचू नाम। अब ये जो ये जिसको बोलते हैं, ये वहाँ के लोकल गुंडे, ये लोकल हैं या वो इनका आयात हुआ है, इनका इंपोर्ट हुआ है तृणमूल के नेता द्वारा। ठीक वही लोग, वही चेहरे, वही कपड़ा, ठीक 1 घंटे बाद, 1 घंटे के लगभग दिलीप दा पे जब हमला होता है योदुबाबू बाजार के लगभग, वहाँ पे वही चेहरे। तो इसका मतलब ये पहले से एक अंदाज किया हुआ था, एक इनका कल्पना था, ये एकदम पूर्व निर्धारित था। और इसीलिए यहाँ जो कलकत्ता पुलिस है, जो कि पोशाक में तृणमूल कांग्रेस के कैडर है, वो कहीं नहीं देखा गया। जहाँ भी आप देखिएगा, हमारे दोनों नेताओं को बचा के लाया जो केंद्रीय फोर्स था। केंद्रीय फोर्स आज यदि बहुत तत्परता से और बहुत दक्षता से यदि काम नहीं करता तो आज बड़ा घटना होता, और वो ही बचा के लाया। एक सादा पोशाक का कलकत्ता पुलिस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो पहले से इनका एक प्रोग्राम के तहत था कि आज ये करेंगे। आज हमारा हर जगह, हमारे जितने नेतागण भवानीपुर में डोर टू डोर पर्ची बांटने का काम कर रहे थे। ये घटना के बाद हम इसका संज्ञान लेते हुए हम यहाँ आए। देखिए, इस घटना के बाद लोगों का मन टूटता है। ये घटना क्यों हुआ, ये पहले से सोच के क्यों हुआ? जैसे कि भवानीपुर में वोट परसेंटेज और गिर जाए। ये देखा गया है कि जब 60 से ऊपर वोट परसेंटेज होता है, जब 62 हुआ 2014 में, बीजेपी ने लीड लिया। जब 59 हुआ 2019 में, सामान्य वोटों से बीजेपी पीछे था। और पिछले साधारण चुनाव में, अभी जो मई में हुआ, जिसके कारण हमारा यहाँ उपचुनाव हो रहा है, उसमें वोटिंग परसेंटेज गिरा के उन्होंने 49 कर दिया, तो 28,000 से हम पीछे हो गए। तो इनका बहुत सिंपल है कि यदि यहाँ पर मतदाता वो वोट ना देने चाहे तो उनकी जीत होगी, यदि मतदाता दें तो उनकी हार निश्चित है। तो उसी को रोकने के लिए, जैसे लोगों के बीच में भय हो, आज ये घटना घटा। देखिए, वोट के ठीक 3 दिन पहले ये घटना घटता है, एक ही घंटे में 2 घटना। इसका आप सबके टीवी के पर्दों में हम देखें, इससे मतदाता के मन में भय होता है। और ये इसलिए हमारा बहुत जोर से मांग है कि पिछले चुनाव में आप 144 धारा सब जगह लागू किए थे, तो ये तो उस पिछले साधारण चुनाव का ही उपचुनाव है, तो इसमें 144 धारा नहीं होने का तो कोई कारण नहीं है। और ख़ास करके जब ये घटना हो गया है, तो इसके बगैर तो ये चुनाव हो नहीं सकता है। आपको 144 धारा कैसे भी लगाना ही है। दूसरा है कि कलकत्ता पुलिस अपना परिचय दे चुका है, एक बार नहीं बार बार। इनको ये बोलते हैं हमको पता नहीं था। जब ये हमारे महिला प्रार्थी के संग दुष्कर्म करते हैं, उनका हाथ पकड़ के टांगते हैं, तब तो उनको पता है कहाँ खड़ा होना है। ऊंचे पद के अफसर, मगर जहाँ पर हमें सुरक्षा देना होता है उनको पता नहीं है, वो गुल हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा चुनाव का अधिकार, दायित्व केंद्र फोर्स पे हो, नहीं तो चुनाव नहीं होगा, आबाद नहीं होगा। ये मूलतः हमारे आज मांग था। और हाँ, जितने यहाँ पर मतदान केंद्र हैं उसमें 100% वेबकास्टिंग हो। हम तो मांग किए थे कि हमें भी मिले इसका लिंक, मगर कम से कम ECI के पास ये लिंक जाए, जैसे इस पर पूरे सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक नजरदारी रहे। यह मूलतः हमारा आज मांग है।